Hi dear students, welcome to all to our institute Srinivas Chemistry. Dear students, in our last class already we discussed about the preparation and properties of haloalkane and haloarenes. Today we will discuss the properties of haloalkane and haloarenes. It is the second class of your organic chemistry first chapter of second year or 12th standard. The chapter name is haloalkane and haloarenes. So my dear students, today our topic is physical and chemical properties. Physical and chemical properties of haloalkane, or we are saying alkyl halide, haloalkane and haloarenes. Is the second video. Already in our last video we discussed about the preparation of haloalkane and haloarenes. So my dear students, if you want to see, you can watch the video of 11th first video of haloalkane and haloarenes preparation and property. If you see this video, that means you are better understand this topic about the knowledge physical and chemical properties of haloalkane and haloarenes. So my dear students, we'll start the topic physical property. Today our topic is physical and chemical properties of haloalkane and haloarenes. So now let's start. Physical properties. First we'll discuss the physical properties. What we'll observe in physical properties? Physical मतलब जो बाहर से दिखाई देता है, जो प्रॉपर्टी को हम बाहर से स्टडी करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज. इन फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी. नंबर वन विल सी द स्टेट of the, that means see whether this molecule is in solid state, liquid state or gaseous state. We'll discuss. Second one, we'll discuss about their solubility. We'll discuss in the solubility, in which compound they are soluble, in polar or non-polar solvent, in which solvent they are soluble. Discussion number two, solubility. Number three, we'll see their color. What appearance of color of this compound. Number four, we'll discuss one of the important property, that is boiling point, BP, boiling point. Clear? And we'll discuss also with the melting point, MP, boiling point and melting point, MP, melting point. And we'll discuss again their state, solubility, color, boiling point element, and their smell also, we can say smell or odor. So these are some properties in which we'll discuss that are under the physical properties. Not only in the haloalkane and haloarenes chapter, but also when we will come across the coming chapter also be next alcohol, phenol, ether, next aldehyde, ketone, carboxylic acid or amine, any organic compound chapter will come. In this topic we will discuss about the physical property. Actually क्या होता है, बहुत सारे क्लास में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, चलो फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई मायने नहीं रखता है, नहीं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टी से भी छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे एंट्रेंस में भी आता है. So dear students, we will discuss today one by one their state, solubility, color, boiling point and melting point and smell. These all are under the physical properties. ये सब physical property के अंदर जाता है. We will discuss one by one. So let's start with one property. The first property we will discuss about the state. About the state. What we will discuss about the state? So state, if you see, basically the lower members of this molecule, lower member, this is like methanol, methyl chloride, ethyl chloride, lower members. Lower members are exist in gaseous state and liquid state. Gas or liquid state exist करता है. Then gradually with the increasing the number of carbon atoms and mass, they क्या होता है, they are become the solid. So lower members are become gases, exist in gaseous and liquid state, and as the number of carbon increases, then the molecule will become changes its state. Why? There is a question. देखो बच्चों क्या होता है, जब मास कम होता है तो बहुत हल्का होता है, समझ में आता है. जितना सपोज मैं आपको बताता हूँ मिथाइल क्लोराइड
Alkyl halide, we are discussing about the chemical properties, physical and chemical property. Physical property, alkyl halide, RX, alkyl halide, clear? Alkyl halide, you are a member like methyl chloride, like your ethyl bromide, or methyl propyl chloride or propyl bromide, whatever discussion. Alkyl halide, methyl chloride, ethyl bromide, propyl bromide, like this we are discussing. So my dear students, द लोअर मेंबर्स, लोअर मेंबर मतलब छोटा छोटा जो मेंबर होता है, जो पहला मेंबर आता है हर ग्रुप में, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, जो पहले छोटे छोटे मेंबर होता है वो बेसिकली गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन सा स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? गैसेस स्टेट में आपको एग्जिस्ट करना दिखने को मिलता है। क्यों? व्हाई? देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन सवाल आपको देता हूँ। जब मास कम होता है, जिसका मास कम होता है बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट होता है, भारी नहीं रहता है। जब धीरे धीरे मास बढ़ता है तो क्या होता है? भारी होता है। उसका मतलब होता है उसका ज़्यादा मास होता है, दैट दे आर वेरी हैवी। तो हैवी होता है। सॉलिड लिक्विड गैस में थोड़ा कंपेयर कर लो, गैस बहुत हल्का है, लिक्विड उससे थोड़ा ज़्यादा भारी है, सॉलिड उससे ज़्यादा भारी होता है। तो दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट एग्जिस्ट इन द स्टेट एवरी चैप्टर। तो लोअर मेंबर्स आर बेसिकली एग्जिस्ट इन गैसियस एंड लिक्विड स्टेट। देन विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, धीरे धीरे जो कार्बन आइटम बढ़ जाएगा, चलो तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? वो लिक्विड देन सॉलिड। क्लियर? दिस इज द फिजिकल स्टेट, विल डिस्कस इन द स्टेट। समझ में आ गया बच्चों? सो इन स्टेट विल डिस्कस द स्टेट मीन्स एग्जिस्टेंस इन विच स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब तीनों स्टेट के बारे में हमको जानकारी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो बेसिकली तो लोअर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनिक क्लास कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। देन ग्रेजुअली विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन्स, जितना कार्बन बढ़ता जाएगा उसका मोलर मास बढ़ता जाएगा। मोलर मास बढ़ने से क्या होगा? उनका स्टेट भी चेंज हो जाएगा। तो छोटा छोटा कार्बन, एक वाला कार्बन, 2, 3, 4 कार्बन ऐसे होने से छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। धीरे धीरे जितना मास बढ़ जाएगा तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। देन धीरे धीरे मास बढ़ेगा तो वो लिक्विड चलेगा, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। दैट मीन्स विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देयर मास ऑल्सो इंक्रीजेस। एज द मास इज इंक्रीजेस देन देयर स्टेट ऑल्सो चेंजेस, द स्टेट इज एग्जिस्टेंस एंड इंक्रीजेस। So dear students, it is very clear, the state is changing. First lower is the mass gaseous state, then it's liquid, then is your solid. As it is varying, then this is also changes. Gas, liquid, solid is a very simply oriented. So carbon बढ़ेगा तो उसका state भी change होगा. So we'll discuss this concept in every chapter. Clear? Number 2 property. Number 2 property is your solubility. We'll discuss about the solubility. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आता रहता है एग्जाम में बार बार। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, कोई बच्चा है, सर एक बच्चा सपोज पूछता है सर अल्किल हैलाइड, चलो पता चल गया कि अल्किल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये सब जो गैस है, धीरे धीरे लिक्विड देन सॉलिड। एरोमेटिक कंपाउंड हालोआरिन्स बेंजीन, चलो क्लोरोबेंजीन। अरे क्लोरोबेंजीन कौन सा स्टेट में एग्जिस्ट करता है? देखो 4-5 कार्बन से ऊपर है, ऑलरेडी 6 कार्बन है बेंजीन, तो दैट मीन्स इट इज एग्जिस्टिंग इन लिक्विड स्टेट। क्लियर? तो थोड़े थोड़े ये तो बड़ा स्टेट है, गैस से भी ज़्यादा है, तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होता है। जितना कार्बन बढ़ेगा नंबर उतना ही स्टेट चेंज हो जाएगा, जितना बढ़ेगा उतना ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। दिस इज सिंपल स्टेट। क्लियर? देन वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, so now solubility, if you see the solubility case as alkyl halides, these compounds are basically organic compounds. You know these organic compounds are non-polar in nature. All hydrocarbons basically non-polars. As alkyl halide also non-polar compound. This alkyl halide compound is non-polar, so it is insoluble in water. It is insoluble in water but soluble in organic solvent like your benzene, okay, your acetone, like these compounds they are soluble. So alkyl halide is insoluble in water. This is a selected question. Why? Insoluble in water. Your alkyl halide you will see basically alkyl chloride, alkyl bromide, alkyl iodide. These compounds they do not have any tendency to form hydrogen bond. They do not have any tendency to form the hydrogen bond. So my dear students, alkyl halides are insoluble in water, solubility case, but they are soluble in organic solvent like your benzene, like your acetone, okay, but these are insoluble in your insoluble in water. There is a question why? Because you know the chlorine do not form hydrogen bond with the
water molecule. Bromine do not form hydrogen bond with the water molecule. Iodine is do not form hydrogen bond with the water molecules. So that's why these are insoluble in water. So hydrogen bond pain tame janicho 11th standard in hydrogen bond is the bond which is formed either with maybe fluorine, maybe oxygen, maybe nitrogen. In case of a fluoride compound, it is very rare. Fluorine is highly reactive and spontaneous formation tar process हम जानिचे. Okay, so alkyl chloride, alkyl bromide, maximum iodide, all are insoluble in water. There is a question: why alkyl halides are insoluble in water? Because they do not form hydrogen bond with water molecule. Clear? And this is the insoluble in water. They are soluble in organic solvent. Then another physical property we will see. Another physical, this is state and solubility. Next physical property we will see. Your physical property. Then your another physical property we will discuss. That is, if you will see color. Basically, alkyl halide, if you will see, alkyl halides, these are most of the alkyl halides are colorless. But when they exposed to air, तंग जो air रखिबो, when alkyl halides basically your alkyl chloride, alkyl bromide, alkyl iodide, if you see this case here, some of the alkyl halides, not all, basically some alkyl halides, not all alkyl halides, clear? So there basically if you see bromide and bromide, alkyl bromide case if you will see, otherwise if you will see iodide case, alkyl iodide, these are some, they show color when exposed to air, if you in the outside if you see that's a bromide and iodide show some color compound, clear? They will expose to air, they will show the color. So these are color tendency. But the very important physical property in this chapter is your boiling point and melting point. We will discuss. The very important property in this topic is boiling point and melting point. If you see boiling point, what is boiling point, how it depends on which factor? We will discuss boiling point and melting point. The next physical property is very important. Physical property is your boiling point and melting point. First you see the boiling point. Boiling point is depend basically mass. If you see the alkyl halide, alkyl fluoride, alkyl chloride, alkyl bromide, alkyl iodide, the boiling point of iodide is greater than bromide, chloride, fluoride. Clear? As the mass of fluorine, chlorine, bromine and iodine, the iodine mass is more. Clear? As a down a group, the mass is increases fluorine, chlorine, bromine, iodine. This is the order of a boiling point of alkyl halide. Another point, if a boiling point is directly proportional to the, boiling point, in which term boiling point is directly proportional, this is the intermolecular strength, and boiling point is inversely proportional to branching of molecule, branching of molecule, straight molecule. Let's see, CH3, CH2, 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 Cl. Let's see, it is one molecule. Okay, A. Another molecule, this is N-butyl chloride, straight butyl, N-butyl chloride. Now I can express this one like this, C, this is a isobutyl chloride, clear? CH2Cl, then CH, this molecule, just see what happening. So here straight butyl chloride, alkyl halide, this is a isobutyl chloride. If you compare here, the branching is occurs here. More is the branching, more is the branch. जितना ज़्यादा होगा, boiling point उतना ही कम होगा. So boiling point is inversely proportional to branching of the molecule. So my dear students, if you compare in these two cases, more is the branching, less is the boiling point. Whose boiling point is more? Boiling point of a straight molecule is more, as its surface area is more. So more is the surface area, more is the strength of the compound, and more is the boiling point. So N-butyl chloride and isobutyl chloride, this is also called isobutyl chloride. Iso group is there, isobutyl chloride. Whose boiling point is more? The N-butyl chloride has more boiling point than the isobutyl chloride. So boiling point is inversely proportional to branching. Remember this one. So जितना branch ज़्यादा होगा, boiling point उतना ही ज़्यादा होगा. So another example I am putting you. So boiling point is depend upon the first mass
हैज द मोर इज द मास, बहुत बड़ा मास है, बहुत ज़्यादा मास है, तो उसको बॉयल करना है, बॉयल करना है, आपको बॉयल करना है, उसको कन्वर्ट करना है, क्लियर. सो द मास बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, directly proportional to mass of the molecule. Clear? If you will see, in case of also be same aryl halide, aryl, if you will see aryl fluoride, aryl chloride, aryl bromide, aryl iodide, same case. As the mass is increases, the boiling point also increases. This is the boiling point of similarly fluorobenzene, chlorobenzene, bromobenzene, iodobenzene, aromatic aryl fluoride, aromatic chloride, aryl bromide, aryl iodide. So chlorobenzene, fluorobenzene, bromobenzene, iodobenzene, if you will compare, also be similar this mass fluorobenzene. This is your chlorobenzene, aromatic compound. This is your bromobenzene. This is your iodobenzene. So whose boiling point is more? Yes, of course, so the mass increases, the boiling point also increases. This is the another order about the boiling point. Now we will see. So boiling point depend होता है basically branch के ऊपर, branch. Another example, if you pentyl 5 carbons लिया हुआ है, suppose this compound 1 2 3 4 5, this is chlorine here. Clear? So what is this molecule? This is N-pentyl chloride, N-pentyl chloride. यदि हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो, और एक 1 2 3 4, okay, chlorine is there and this is a CH3. You will put here isopentyl chloride, iso group is there, CH3 iso group is there, isopentyl chloride. Clear? Now another is a C, 1 2 3 4 5, okay, you will see here 1, this is 2, CH3, CH3, CH2, CH3, and this is just suppose chlorine. What you are observing this one? 1, so this is isopentyl chloride, neopentyl or taut butyl chloride or pentyl chloride, we can write also taut pentyl chloride, tertiary alkyl halide, taut pentyl chloride, having same mass but different in their carbon chain, having same mass but different in their carbon chain. So more is the branching, this has more surface area, then this surface area is less, then the surface area is so less. So option there A, B, C. In which of the following three cases which boiling point is more? As boiling point is directly proportional to the branch, inversely proportional to the branching. So more is the branching, less is the boiling point. So इधर ज़्यादा ब्रांच हुआ है, एक दो ब्रांच है, इधर एक ब्रांच है, इधर कोई भी ब्रांच नहीं, तो ज़्यादा ब्रांच होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. तो यहाँ से आंसर आएगा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा ना, ए वाला मॉलिक्यूल, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसका वाला बी, then C. As the boiling point branch is more, then your van der Waals force of attraction also be, this is your weak molecule का हो जाएगा, intermolecular force of attraction also decreases. Clear? So boiling point is inversely proportional to branching of the molecule. Now about the melting point. Melting point. If you will see the melting point, melting point. Similarly, in case of melting point depend upon the packing. You just remember, like the boiling point is depend, but melting point is something difference. Your melting point is depend upon the packing. What is packing? This is symmetric packing. Molecule जितना अच्छा पैक होगा, देखो हाथ तो दोनों को packing close हुआ है. So symmetric packing. So more is the close packing of the molecule, more is the melting point. तो basically जो normal molecule होता है उसमें भी melting point depend होता है mass के ऊपर. Fluoride, chloride, bromide, iodide, if you see, this iodide is more melting point. Why? देखो मेल्ट करना है, मेल्ट करना का मतलब क्या है कि सॉलिड को मेल्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है. उसको जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जो van der Waals फोर्स होता है मॉलिक्यूल के अंदर, उसको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है. तो जितना ही अच्छा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उसको तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी की जरूरत होगा. That means see, in case of melting point also be in similar case, if you will see alkyl halide, alkyl fluoride, alkyl chloride, alkyl bromide, alkyl iodide, the melting point similarly iodide has more as compared to this one. But in disubstituent of haloarenes, if you will see something difference.
let's see, there is a compound of, suppose this is ortho dichlorobenzene, otherwise this is your meta dichlorobenzene, this is a question, para dichlorobenzene. You will see in these three cases there is a question, ortho dichlorobenzene, meta dichlorobenzene and a para dichlorobenzene. This question is coming in the exam also, para dichlorobenzene. In this there is a symmetrical packing, front to front, symmetrically. Suppose this is brick, ईटा, उसके ऊपर धीरे धीरे करो, क्या होता है, सिमेट्रिकल पैकिंग. आज इट इज अ सिमेट्रिकल पैकिंग, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज मोर कंपेयर टू ortho and meta. This is a simple question. This is a question is asking in time in between ortho meta and para dichlorobenzene, whose melting point is more? The answer is your packing is better due to symmetrical packing. In para dichlorobenzene, this is your para dichlorobenzene is better. Suppose this is your A, this is your B, this is your C. The right answer is the melting point order is your C is more melting. C has more melting point. Clear? C has more melting para. Then is your ortho. C, then A, then is B. This value you have to remember. This is the order of a melting point in dihaloarenes. This is a question coming in NCERT board also. Ortho dichlorobenzene, meta dichlorobenzene, para dichlorobenzene. In which of the following the melting point of the chlorobenzene is dichlorobenzene is more? This is depend upon the packing of the molecule. More is the better is the packing, better is the crystal, better is the formation of the compound, and more is the strength. That means they require more temperature to melt. Clear? So melting point is depend upon again the symmetrical packing or close packing of the molecule. Do you understand? So melting point also crystal lattice के ऊपर depend करता है. And boiling point depend upon होता है your van der Waals force of attraction. Boiling point basically समझ में आ गया ना आप लोग. Boiling point depend upon your van der Waals force of attraction, which is also directly proportional to molar mass. Clear? Boiling point is directly proportional to van der Waals force of attraction. More is the van der Waals force of attraction, more is the boiling point, more is the molecular mass. This is the important point. van der Waals force of attraction, this is weak molecular force. Molecule के अंदर एक force जो attraction होके रहता है, this is molecular force. We are already van der Waals force, उसके भी London forces होता है, अलग अलग तरह का force. इसके बारे में ऑलरेडी लास्ट ईयर हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाए हैं आपका बॉन्डिंग चैप्टर में. तो अभी जो पढ़ाई चल रहा है उसके बाद हम बात करते हैं हालो अल्केन एंड हालो आरेंस, उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं. हालो अल्केन एंड हालो आरेंस, उसमें से बेसिकली हालो आरेंस का मेल्टिंग पॉइंट कभी कभी एग्जाम में पूछता है. तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, इसका डिपेंड होता है. मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली डिपेंड अपॉन द सिमेट्रिक नेचर और पैकिंग, किस तरह का पैकिंग होता है, और क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल की तरह क्रिस्टल लैटिस. तो अच्छा पैकिंग होने से क्रिस्टल लैटिस बनता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. This is simple question about the melting point. But another property, very important property you have to remember, dipole moment. यदि अल्किल हैलाइड या अरिल हैलाइड का कुछ अलग प्रॉपर्टी की बात करें, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट. है कभी कभी सवाल भी पूछता है डाइपोल मोमेंट. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑलरेडी यू नो इन द डाइपोल मोमेंट. आज अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, अल्किल हैलाइड. सो अल्किल हैलाइड में कभी कभी एग्जाम में एक सवाल पूछा गया है, एंट्रेंस में भी पूछा गया है, हुज डाइपोल मोमेंट इज मोर, राइट द ऑर्डर ऑफ अ डाइपोल मोमेंट. तो बेसिकली हम लोग को मालूम है डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द दिस. फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इसका चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा आएगा. तो इसके अनुसार हमको ऐसे होना चाहिए, अल्किल फ्लोराइड हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन अल्किल क्लोराइड, देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल आयोडाइड. बट इट इज रॉन्ग. इट इज सम एक्सेप्शनल केस इज हियर. as fluorine has more electro affinity value. So this is exceptional, you have to remember this point. This is very this is right, the right order is the alkyl chloride has more dipole moment, the dipole moment value of a dipole moment order. So alkyl chloride is more dipole moment than alkyl fluoride, then fluoride, then iodide. This is the right order. Very important, note it. Dipole moment of which alkyl halide is more. Don't write alkyl fluoride.
हियर द एक्सेप्शनल केस इज क्लोराइड। एक्सेप्शनल केस में भी सवाल पूछा जाता है। तो अल्किल क्लोराइड हैज मोर डाइपोल मोमेंट, अल्किल क्लोराइड हैज मोर डाइपोल मोमेंट, याद रख लो बच्चों, अल्किल क्लोराइड हैज मोर डाइपोल मोमेंट, अल्काइल क्लोराइड RCl, remember this one is very important point. Another question, if you will see the dipole moment, कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछा जाता है, देखो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इन हालोकेरेंस, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड पारा डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें से क्या होता है, किसका डाइपोल मोमेंट क्या कम होता है, किसका ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन और क्लोरीन, इसके अंदर थोड़ा चार्ज सेपरेशन होता है, क्लोरीन इज मोर, पोलरिटी डेवलप होता है। तो कार्बन क्लोरीन में दिस इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड डाइपोल मोमेंट इज कैंसल ईच अदर एज वेक्टर क्वांटिटी, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ पारा डाइक्लोरोबेंजीन इज 0। पारा डाइक्लोरोबेंजीन इसके डाइपोल मोमेंट 0 होता है। आप लोग बुक में भी देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में आपका दिया होगा, ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है, व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ पारा डाइक्लोरोबेंजीन हैज 0 वैल्यू। डाइपोल मोमेंट ऑफ पारा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट एक फैक्टर होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी के दौरान आता है, जहां पर हमको ये दिखने को मिलता है कि चलो पारा डाइक्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट क्यों कम होता है, समझ में आ गया। तो इसका कम होने के कारण है क्योंकि डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका कैंसलेशन हो जाता है, पारा डाइक्लोरोबेंजीन का यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो ये था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको साथ डिस्कशन कर लिया, अभी समझ में आ गया। अभी चलते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नोट इट कर लो, नोट। नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th स्टैंडर्ड का चल रहा है, 12th स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर योर हालो अल्केन हालो अरेंज का आज का क्लास चल रहा है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अभी आपके सामने हमने फिजिकल प्रॉपर्टी रखे, जहाँ से आपको ये पता चला चलो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या दिखने को मिलता है। बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या दिखने को मिलता है, आपका स्टेट दिखना पड़ता है, मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, वो किस में सॉल्युबल होता है, पानी में पोलर सॉल्वेंट में होता है या नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। तो अल्किल हैलाइड बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनमें से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी नहीं है बेसिकली। तो कुछ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कंपाउंड कलर दिखाई देंगे और कुछ स्मेल भी उनका होता है, जो स्मेल के बारे में हमने नहीं बताया। तो स्मेल भी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी के दौरान आता है। बेसिकली दे आर वेरी स्वीट स्मेल, जैसे अगरबत्ती जैसे स्मेल होता है, ऑर्डर ODOUR ऑर्डर स्मेल होते हैं, तो उसका ऑर्डर भी कुछ अगरबत्ती जैसे स्वीट स्मेल भी होता है। और उसके बारे में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन आता है उसमें से एग्जाम में, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अल्किल हैलाइड का। तो मोर इज द मास, मोर इज द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, एंड ब्रांचिंग केस इफ यू विल सी लार्जर इज द ब्रांच, लेस इज द बॉइलिंग पॉइंट। लार्जर इज द, जितना ज़्यादा ब्रांच होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, समझ में आए। तो ऐसे कुछ और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया, डाइपोल मोमेंट के बारे में भी बताया। तो क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट बेसिकली ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड से ज़्यादा होता है। तो बच्चे ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्किल एंड अराइल हैलाइड। अभी हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि एग्जाम में हर वक्त आता है क्वेश्चन, केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसके साथ रिएक्शन करना है, हमें बस सिर्फ देखना है। जिस मॉलिक्यूल का केमिकल प्रॉपर्टी हमको दिखना है, बस वो मॉलिक्यूल किस किस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, किस तरह का रिएक्शन दिखा सकते हैं, बात करेंगे। तो चलो अभी शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हालो अल्केन एंड हालो अरेंज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम पहले बात करेंगे अल्किल हैलाइड का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, कौन कौन सा तरह का रिएक्शन दिखा सकता है। अल्किल हैलाइड कैन शोज, कौन सा तरह कौन शो दिखा सकता है। नंबर 1 हम बात करेंगे उसका, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको कहते हैं हम SN, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आज की बात करेंगे इसमें बारे में। नंबर 2 कौन सा और प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, उसका एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, उसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे करता है। नंबर 3 आपका प्रॉपर्टी और क्या देख सकते हैं हम, रिएक्शन होती मेटल, कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे अल्किल हैलाइड, जैसे कि सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल, इसके बारे में हम बात करेंगे।
तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के साथ ये चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होता है। तो आज का टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हालोअल्केन एंड हालेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी नाउ विल डिस्कस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चे लोग, जो बच्चा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है उसको नहीं दिखे तो हमारा एक ऑर्गेनिक वीडियो हमने बताया है, आप टाइप करके देख सकते हो, नहीं तो मुझ यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो। क्या श्रीनिवास केमिस्ट्री आपका है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। किस तरह का ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली जो 4 तरह का इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको दिखने को मिलता है उनमें से एक रिएक्शन है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। चलो, तो अल्किल हैलाइड RH, अल्काइल हैलाइड, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा मतलब एक न्यूक्लियोफाइल वहां पर सब्स्टिट्यूट होगा। न्यूक्लियोफाइल को हम बेसिकली NU और नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, जो न्यूक्लियस को प्यार करता है। तो न्यूक्लियस एटम के अंदर रहता है वो पॉजिटिव वाला, उसको प्यार करने वाला होता है नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल को पहचानने के लिए नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नहीं तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा होता है। तो अल्किल हैलाइड जब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल इधर आके हालोजन के प्लेस में लगेगा और एक हालोजन यहाँ से हट जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट होता है, कोई किसी के बदले यहाँ पर लगता है, सब्स्टिट्यूट होता है। मैं तुम्हारे प्लेस को चला जाऊँगा, तुम मेरे प्लेस को चले आना। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ हालोजन के ऊपर लग गया तो हालोजन यहाँ से हटेगा। तो ये आ गया आपका आंसर NaNu + X। सिंपल सा क्वेश्चन। अल्किल हैलाइड जब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ इसका चैप्टर शुरू करता हूँ। चलो, एक एग्जांपल आपके साथ है मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड अल्किल हैलाइड, जब मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन करता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता है यहाँ पर K+OH-। तो ये वाला जो स्पेसीज होता है अटैकिंग रिएजेंट, ये होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव चार्ज शो करता है तो वो क्या करेगा, इस ब्रोमीन के ऊपर आके लगेगा और ब्रोमीन यहाँ से हट जाएगा, ब्रोमीन अपना प्लेस, उसके प्लेस को चला जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर CH3OH, मिथानल, मिथानल प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। भाई ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। OH चला इधर लग गया, ब्रोमीन आता है, सारे ये तो सिंपल सा रिएक्शन है। नहीं, ये दिखने को जैसे होता है उसका डिटेल्स को जानना चाहिए। ये रिएक्शन यहाँ पर लिमिट नहीं हुआ है, अभी हम उसका मैकेनिज्म दिखेंगे। तो सिर्फ एग्जाम्पल दिखाने के लिए हमने बता रहे थे क्या, चलो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जाके एक यहाँ से हालोजन बंदे को यहाँ से निकालता है और न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर लगता है। तो सिंपल सा, तो नेगेटिव चला इसके ऊपर और ब्रोमीन चला, मगर ये रिएक्शन होता है कैसे इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पर देंगे। तो चलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म शुरू करते हैं। तो सिंपल हमारा दिमाग सिर्फ इसमें चलना है कि भाई इस रिएक्शन में सिर्फ न्यूक्लियोफाइल को लेकर हालोजन के प्लेस में लगाना है और हालोजन को यहाँ से हटा देना है, और कुछ बात नहीं। चलो चलो शुरू करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म में हम बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन। चलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो SN रिएक्शन होता है वो तो 2 तरह का होता है। एक होता है SN1 जिसको हम कह सकते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक होता है SN2 जिसको हम कहते हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. This is your SN1 and this is your SN2. लास्ट ईयर स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आया था आपका 2019-20 में SN2 मैकेनिज्म के बारे में। एक्सप्लेन द SN2 मैकेनिज्म।
SN2 रिएक्शन के बारे में बताया और इसका एक एग्जाम्पल दिया था। 3 मार्क का क्वेश्चन लास्ट ईयर आप लोग देख सकते हो कि काउंसिल का क्वेश्चन है, वो स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है और आपका CBSE बोर्ड में तो हर साल इसमें से लेकर क्वेश्चन आता रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, उसको चलो डिटेल्स हम बात करते हैं। SN1 एंड SN2 चलो शुरू करते हैं, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। SN1 SN2 तो चलो पहले हम SN1 के से स्टार्ट करते हैं। SN1 बेसिकली SN1 रिएक्शन, इट इज पॉइंट लिख सकते हो आप, इट इज शोन बाय, ये रिएक्शन कौन दिखा सकता है? इट इज शोन बाय टॉर्सियरी अल्किल हैलाइड। ये टॉर्सियरी अल्किल हैलाइड 3 डिग्री वाला अल्किल हैलाइड दिखा सकता है। SN1 को दिखाता है टॉर्सियरी अल्किल हैलाइड। SN1 रिएक्शन शोन बाय टॉर्सियरी अल्किल हैलाइड। क्लियर? पॉइंट 2 इसका पहला वाला पॉइंट हो गया। पॉइंट 2 ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन बेसिकली 2 स्टेप में होता है। इट इज ऑकर्स इन 2 स्टेप्स। इट इज ऑकर्स इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, एक स्टेप में नहीं होगा। एक से ज़्यादा स्टेप में जो रिएक्शन होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। और वहाँ से हमको पता है केमिकल काइनेटिक्स में, चलो जो एक से ज़्यादा स्टेप में होता है उसमें से जो स्लो स्टेप होता है वो रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऑलरेडी हमने इसमें स्टडी किए हैं। क्लियर? चलो SN1 रिएक्शन पहले कौन दिखाता है? टॉर्सियरी अल्किल हैलाइड दिखाता है। जहाँ पर टॉर्सियरी अल्किल हैलाइड दिखाता है दिखने को मिलेगा SN1 रिएक्शन में, हम देख सकते हैं टॉर्सियरी अल्किल बेहतरीन दिखा सकता है। इट ऑकर्स इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। नंबर 3 पॉइंट, SN1 रिएक्शन जो होता है, चलो स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 2 में, इसके 2 स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो रिएक्शन है SN1 टॉर्सियरी अल्किल, पहले हमारा मतलब क्या है, हमारा एम क्या है? इसमें से टॉर्सियरी अल्किल हैलाइड RRRCX, टॉर्सियरी हैलाइड के साथ मुझे न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन करना है, बस सिंपल है। हम पढ़ाई कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों, तो उनमें से ये टॉर्सियरी अल्किल हैलाइड है। ऑलरेडी इन आवर 11 फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, जो लोग नहीं दिखे हैं उसमें से प्राइमरी सेकेंडरी टॉर्सियरी अल्किल हैलाइड के बारे में सब कुछ आपको दिखने को मिलेगा। तो टॉर्सियरी अल्किल हैलाइड जो है RRRCX, दिस इज टॉर्सियरी अल्किल हैलाइड, उसके साथ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर रहा है। जब ये रिएक्शन होता है, कैसे होता है, उसको हम डिटेल्स मैकेनिज्म के साथ पढ़ाई करेंगे। चलो, इट इज शोन बाय टॉर्सियरी अल्किल हैलाइड, इट इज ऑकर्स इन 2 स्टेप्स। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होने वाला है। तो पहला स्टेप का काम होता है क्लेवेज और ब्रेकिंग, जो कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को ब्रेक करना है भाई, ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्योंकि आप GOC मेरा देखो वीडियो, GOC में हमने बताया है ऑलरेडी, इन GOC ऑलरेडी आई टोल्ड, जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उसका एक ही फंडा होता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड। पुराने बॉन्ड को ब्रेक कर लो, नया बॉन्ड बना लो, समझे? तो इसी तरह ये जो पुराना बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन, उसका बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो क्लेवेज ऑफ और ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो भाई बॉन्ड को ब्रेक कर लो, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो भाई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने से क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने से क्या होता है? हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, हमको पता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बन से ज़्यादा नेगेटिव है, तो उसको बॉन्ड ब्रेक करने से कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन हो गया नेगेटिव, चला आया बाहर से। समझ में आ रहा है? अब लोग यहाँ से हाइड्रोजन का हटा दिया, तो ये रिएक्शन को मेजरमेंट करने से पता चल कि ये प्रैक्टिकल दिखा गया कि ये जो स्टेप होता है ये बहुत स्लो स्टेप होता है। ये रिएक्शन स्लो स्टेप एंड रिवर्सिबल होता है। और जो स्लो स्टेप होता है वो होता है RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस स्टेप से हम रिएक्शन को मेजरमेंट कर सकते हैं, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। पहले स्टेप का काम हो गया, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कार्बन में आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आ गया। भाई कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसको क्या पढ़ते हैं? कार्बोकैटायन, रिएक्शन इंटरमीडिएट, दिस इज योर कार्बोकैटायन, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। 11 स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। रिएक्शन था आपका क्या? रिएक्शन मैकेनिज्म, GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट में हमने ऑलरेडी बताया था आपको कार्बोकैटायन। तो हो गया पहले स्टेप में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिस इज योर कार्बोकैटायन। क्लेवेज और ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टेप 2,
स्टेप 2 में क्या होता है, चलो स्टेप 2 में क्या हो सकता है, स्टेप 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो भाई इसमें अल्किल हैलाइड, टॉर्सियरी अल्किल हैलाइड है, उसमें न्यूक्लियोफाइल से पे अटैक करना है। तो पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। किसको अटैक करेगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव के पास पक्का नेगेटिव ही अटैक करेगा, तो नेगेटिव के पास अटैक करने वाला है। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू दी रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट के पास अटैक करेगा, दैट इज योर कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन के पास अटैक करेगा। बस इस स्टेप में वही होना है। देखो अटैक करता है, कैसे अटैक करता है, तो कार्बोकैटायन बेसिकली ट्रायंगुलर शेप 120 डिग्री एंगल में रहता है, आपको तो पता है, दिस इज कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो न्यूक्लियोफाइल आने से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आने से क्या होगा, तो न्यूक्लियोफाइल चाहे अटैक करेगा तो यहाँ से फ्रंट डायरेक्शन भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक करने के भी चांस है, तो दोनों चीजें अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल कैन बी अटैक हियर इन द फ्रंट डायरेक्शन एज वेल एज इन द बैक डायरेक्शन। भाई क्या बात है, तो न्यूक्लियोफाइल चाहेगा कि फ्रंट में भी अटैक करने की चांस है और बैक से अटैक करना चाहते हैं। फ्रंट में ज्यादा नहीं, बैक में ज्यादा हो सकता है। क्यों फ्रंट में अटैक नहीं कर सकता, ये भी सवाल एक पूछ सकते हैं बच्चे लोग, सर फ्रंट में होगा बैक में होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन छोड़ा है इधर, वो भी कहाँ इधर उधर मंडराता होगा। भाई चलो मैं हम भी अटैक कर सकता हूँ, हाइड्रोजन आके अटैक करने की चांस है, उसके बारे में हम मैकेनिज्म बताएंगे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इधर फ्रंट से भी अटैक कर सकता है तो बैक से भी अटैक कर सकता है, तो दोनों तरफ अटैक करने की चांस है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या ना अटैक टू द कार्बोकैटायन इन द फ्रंट डायरेक्शन एज वेल एज इन द बैक डायरेक्शन। तो लोग फ्रंट में अटैक करता है तो ये हो गया एक प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफाइल आगे चल गया लग गया तो ये हो गया एक प्रोडक्ट चल गया, चलो चलो ओके। जो फ्रंट में अटैक करता है उसको हम कहते हैं रिटेंशन। क्या कहते हैं, रिटेंशन, रिटेंशन, RETENTION। रिटेंशन मतलब जैसे था वैसे, रिटेंशन। यहाँ से हाइड्रोजन लगा निकला था, यहाँ से हाइड्रोजन निकला था, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक हो गया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से रिटेंशन प्रोडक्ट निकलेगा, पहले स्टेप में रिटेंशन दिखने को मिलेगा आपको, यहाँ से रिटेंशन। चलो बैक में अटैक करता है तो क्या होता है, पीछे से अटैक करेगा तो क्या होगा, पीछे पीछे इसके कार्बन पीछे से अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो एक और एक प्रोडक्ट निकलेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नीचे नहीं दिखाई देता है तो हम ऊपर लिखते हैं, चलो ऊपर लिखते हैं। ये तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो यहाँ को अच्छी तरह देखना चाहिए। तो चलो भाई पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव चार्ज होता है वो आकर लगेगा। चलो भाई कैसे लगता है देखेंगे। तो यहाँ से फ्रंट दिशा में लग सकते हैं और बैक में भी लगने के चांस है। तो फ्रंट में लगेगा तो ये हो जाएगा CR फ्रंट में लगेगा। तो फ्रंट में जो प्रोडक्ट आता है उसको हम कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन मतलब वैसे का वैसे, रिटेंशन जहाँ से निकला था हाइड्रोजन वहाँ से न्यूक्लियोफाइल आके लग गया, यहाँ से निकला था यहाँ से लग गया। और बैक से लगेगा तो क्या होगा, बैक तरफ पीछे से लगेगा तो पीछे से अटैक करेगा तो क्या होगा, ऐसे कुछ प्रोडक्ट निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल CR। दिस इज योर इन्वर्सन प्रोडक्ट, इन्वर्सन। तो दोनों प्रोडक्ट निकल सकता है, रिटेंशन निकल सकता है और इन्वर्सन भी निकल सकता है, समझ में आ रहा है। तो दोनों मिक्सर यहाँ से निकल सकता है, रिटेंशन एंड इन्वर्सन। द मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड हियर, दिस बोथ मिक्सचर इज कॉल्ड योर रेसमिक मिक्सचर। So dear students, you write in your point, next point, that is your the product in the SN1, the product in SN1 point number 3 or 4, product in SN4 number point, the product in SN1 is your racemic mixture or racemic product. Racemic mixture, this is the mixture of both dextro and levo, dextro and levo, R and S configuration। ऑप्टिकल आइसोमर्जिम ने 11th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी आपको बताया था। तो फ्रंट डायरेक्शन में अटैक करता है, दिस इज योर रिटेंशन, बैक डायरेक्शन में अटैक करता है, दिस इज योर इन्वर्सन। तो दोनों मिलाकर मिलता है तो उसको कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। सो द प्रोडक्ट इन SN1 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस इज की पॉइंट। The product in SN1 is always a racemic mixture product. Which product? A racemic mixture product. The product in SN1 is a racemic mixture. समझ में आ गया। अभी चलो एक क्यों SN1 हुआ है, तो प्रैक्टिकली दिखा गया ये जो स्टेप होता है, ये वाला स्टेप थोड़ा फास्ट होता है। न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है, ये वाला स्टेप फास्ट है। तो आउट ऑफ दिस ऑल स्टेप्स, दोनों स्टेप से पहला वाला स्टेप था वो था स्लो स्टेप,
सो स्लो स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप होता है क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो चलो पहला स्टेप को चलो, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिटरमाइन फ्रॉम द स्लो स्टेप। तो पहले स्टेप में कौन था, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टॉर्शियरी अल्किल हैलाइड, समझ में आ रहा है ना। तो पहले स्टेप में टॉर्शियरी अल्किल हैलाइड था। तो रेट सिर्फ डिपेंड करेगा टॉर्शियरी अल्किल हैलाइड के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है। रेट ऑलवेज डिपेंड इन SN1 इज टॉर्शियरी अल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट मीन्स दिस इज R इज इक्वल टू K R3CX। तो एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कह सकते हैं और यूनिमोलिकुलर भी कह सकते हैं। सो दैट इज SN1, सो इट इज SN1। समझ में आएगा आप लोग को, सिंपल सा बात है बेटा। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 होता है वो टॉर्शियरी हैलाइड बेसिकली दिखा सकता है। पहले 2 स्टेप में इस रिएक्शन को करते हैं। पहले स्टेप में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाना से कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, और उसमें क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होता है वो जाके अटैक करता है। वो कार्बोकैटायन के साथ जब अटैक करेगा तो दोनों दिशा में अटैक करने के चांस है, फ्रंट में करेगा नहीं तो बैक में करेगा। तो 100%, बट दिस इज 100% नॉट रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि ये वाला बेसिकली ज़्यादा 50 से, एक्चुअली बुक में बहुत सारे एंट्रेंस बुक में भी देखने को मिलेगा 50% से ज़्यादा बैक साइड में होता है, 50% से कम फ्रंट में होता है, दोनों 100 इक्वल नहीं होता है। तो 100% नॉट रेसमिक, 100% नॉट एनांशियोमर्स, मिक्सचर ऑफ इक्वल D एंड L, डेक्स्ट्रो एंड लेवोफॉर्म, ऑप्टिकल आइसोमर में आपको दिखने को मिलेगा। सो बेसिकली हम इतना याद रखना है, SN1 में SN1 कौन दिखा सकता है, SN1 कौन दिखा सकता है, SN1 दिखा सकता है, कौन दिखा सकता है, SN1 टर्शियरी अल्किल हैलाइड दिखा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट SN1। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है आपको मैं बताना चाहता हूँ SN1 के बारे में। SN1 में कौन किसका देखो और क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है SN1 में। बेसिकली जो SN1 रिएक्शन होता है वो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में फेवर करेगा। दिस रिएक्शन फेवर ऑन लो टेम्परेचर, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है उसमें से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दीज आर बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज बेसिकल फेवर एट लो टेम्परेचर होगा, क्योंकि ली-चाटलर प्रिंसिपल में आपको मालूम होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ द टेम्परेचर इज लो। समझ में आ गया। नंबर 2, इसमें जो सॉल्वेंट डालना है वो सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भाई ये रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, इथानॉल, ऐसे जैसे सॉल्वेंट आपको रखने से वो रिएक्शन पता चल सकता है भाई कंप्लीटली SN1 है। समझ में। तो SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना जरूरी है। ये सॉल्वेंट होगा तो रिएक्शन ब्रेक होने से आसान होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि देखो ये अल्किल हैलाइड जो होता है इस बॉन्ड को कमजोर करने के लिए, इस बॉन्ड को वीक करने के लिए यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना जरूरी है। वाटर एक बेहतरीन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो इसका H+ होगा और इसमें से जो बॉन्ड निकलेगा उसको चारों तरफ वो क्या होगा, घेर जाएगा, चारों तरफ उसको कवर कर लेगा। ये हालोजन नहीं तो हालोजन वापस लगने की चांस है। देखो भाई इधर से जो हालोजन निकल जाएगा, हालोजन निकल से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये हालोजन नेगेटिव है, इसको कवर करके रखना है। इसका काम है बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर डाइपोल क्रिएट करेगा, डाइपोल क्रिएट करके उसको क्या करेगा, घेर लेगा। समझ में आया। तो इसके कारण क्या होगा, ये हालोजन चारों तरफ नहीं जा सकता है, नहीं तो वापस आकर इधर अटैक करने की कोशिश करेगा। इसलिए इन ऑल SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वी आर यूजिंग। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसका काम है ये बॉन्ड को कमजोर करेगा और जो निकलता हुआ न्यूक्लियोफाइल है और लिविंग ग्रुप जो होता है, जो छोड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल है, जो लिविंग ग्रुप होता है उसको पकड़ के रखने के लिए, उसको वापस यहाँ अंदर घुसने के लिए नहीं देगा। समझ में आ रहा है। दिस इज द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वी आर यूजिंग। ये रिएक्शन लो टेम्परेचर में यूज होता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर SN1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर SN1 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो टर्शियरी अल्किल हैलाइड बहुत अच्छा दिखाएगा, उसके बाद सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, उसके बाद प्राइमरी अल्किल हैलाइड। दिस इज द ऑर्डर। जिसको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आता रहता है, चलो ए वाला एक ऑप्शन दिया है और एक वाला ऑप्शन दिया है और ए वाला ऑप्शन दिया है। समझ में।
तो ये तीनों में कौन सा वाला अल्किल हैलाइड SN1 को फेवर करेगा SN1 ऑर्डर में? ये चलो ए बी ए सी। सो दिस इज योर टर्शियरी अल्किल हैलाइड। ये तीनों साइड में कार्बन लगा है, टर्शियरी कार्बन आटम। तो टर्शियरी कार्बन के साथ हालोजन है, टर्शियरी कार्बन के साथ हालोजन है। दिस इज योर टर्शियरी अल्किल हैलाइड, दिस इज योर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, दिस इज योर प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो टर्शियरी अल्किल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। सो द ऑर्डर ऑफ द अल्किल हैलाइड लाइक दिस। समझ में आया? तो टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। सो द ऑर्डर ऑफ ए वाला कंपाउंड ए वाला पहले दिखाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ए बी सी ऑर्डर। टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये तीनों अल्किल हैलाइड के बारे में हम बात करेंगे। टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। क्लियर? सो SN1 का बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। अभी SN2 के बारे में बताएंगे। SN1, चलो एक SN1 का एग्जाम्पल रखते हैं। SN1 का एग्जाम्पल रखते हैं, बहुत बेहतरीन। योर हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड SN1 को फेवर करता है। देखो ये अल्किल हैलाइड हाइड्रोलिसिस, पानी डालना है, सिर्फ अल्किल हैलाइड में हमको पानी रिएक्शन करना है H2O, वाटर में H प्लस OH माइनस। चलो OH माइनस इधर लगेगा, X इधर से निकल जाएगा, हो गया आपका ROH प्लस HX। ये सिंपल सा रिएक्शन है। अब ये होता है कैसे, डिटेल्स उसका मैकेनिज्म देखो। टर्शियरी अल्किल हैलाइड, चलो CH, तो टर्शियरी अल्किल हैलाइड में चलो ये रिएक्शन करते हैं। सपोज ये आपका क्लोरीन है, टॉट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी अल्किल हैलाइड टॉट ब्यूटाइल क्लोराइड, उसमें वाटर को रिएक्शन कीजिए। तो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो क्लोरीन से यहाँ से हटेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, OH अटैक करने की चांस है। तो H प्लस OH माइनस इज द योर न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है, पहले स्टेप में आपको क्या होगा, स्टेप वन में क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 टॉट ब्यूटाइल क्लोराइड। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये आ जाएगा आपके लिए CH3 कार्बोकैटायन ट्राइंगुलर शेप। ओके, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो ये आ गया आपका Cl माइनस पहला स्टेप में SN1। इन फर्स्ट स्टेप द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक। इन सेकेंड स्टेप द स्टेप 1, नोट कर लो, स्टेप 1। देन स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, देखो स्टेप 2 क्लियर। इन स्टेप 2 दिस कार्बोकैटायन जो है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कौन वाला, OH माइनस। तो OH माइनस, वाटर का जो OH माइनस अटैक करने वाला है, तो एक OH इधर से अटैक कर सकता है और एक OH इधर से अटैक कर सकता है। तो प्रैक्टिकली जो पहला वाला स्टेप है, ये पहला वाला स्टेप बहुत स्लो होता है। दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड दिस इज वेरी स्लो स्टेप। क्लियर? RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, OH इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, तो दोनों लगेगा तो क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट मिल सकता है, इक्वल मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले फ्रंट डायरेक्शन में जो मिलता है वो होता है रिटेंशन, वो प्रोडक्ट आएगा रिटेंशन प्रोडक्ट, फ्रंट दिशा में जो लगता है, आगे आके लगेगा। जिधर से चला था नेगेटिव, जहाँ से छोड़ा था वहाँ पर आके लग गया नेगेटिव। ये बोला क्लोरीन जहाँ से हटा था वहाँ से OH लग गया। सो दिस इज रिटेंशन, दिस प्रोडक्ट इज योर रिटेंशन। समझ में आया? और दूसरा वाला है पीछे से लगेगा जो इन्वर्सन प्रोडक्ट, बैक साइड में जो लगेगा। चलो बैक साइड में OH आके इधर लगेगा, तो OH लग गया, कार्बन CH3 आ गया भैया। ये इन्वर्सन पीछे वाला प्रोडक्ट है, इन्वर्सन। तो इट इज रिटेंशन एंड इन्वर्सन दोनों मिक्सचर मिलता है, तो इट इज ए रेसमिक मिक्सचर। सो द प्रोडक्ट इज योर रेसमिक मिक्सचर भाई। ये तो ऑप्टिकली 100% एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। कैसे? क्योंकि ये कायरल कार्बन आटम नहीं है। जो कार्बन के चारों तरफ अलग अलग आटम होगा वो होगा कायरल कार्बन आटम। जिस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग आटम नहीं होगा, अलग अलग होगा, वो अलग अलग, सब अलग अलग होगा, वो क्या है, कायरल कार्बन आटम है। एक ही कायरल कार्बन आटम मिल जाए तो हम ऑप्टिकली उसको एक्टिव कह सकते हैं। तो दिस इज नॉट 100% ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यदि अलग अलग ग्रुप होगा तो हो सकता है, समझ में आएगा। तो 2-क्लोरोब्यूटेन की बात करें, हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव 2-क्लोरोब्यूटेन में आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो दिस इज, बट द प्रोडक्ट इज योर रेसमिक मिक्सर, द प्रोडक्ट इज योर रेसमिक मिक्सर प्रोडक्ट, रेसमिक मिक्सर।
क्लियर स्टूडेंट? सो यहाँ पर जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना जरूरी है, वाटर, दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वो होगा तो ये बॉन्ड कमजोर होगा, बॉन्ड कमजोर होगा तो ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होने से क्यों होगा? क्योंकि ये डाइपोल है, एक डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव, वाटर में आपको मालूम होगा डाइपोल है, वाटर एक डाइपोल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज किया, तो ये डाइपोल, इस डाइपोल की वजह से ये मॉलिक्यूल वीक होगा, धीरे धीरे मॉलिक्यूल वीक होने से क्लोरीन यहाँ से हटेगा, और ये जो क्लोरीन हटेगा इसको यहाँ पर घेर लिया जाएगा, वाटर घेर लेगा। ये अलग अलग मैकेनिज्म है, इसके बारे में 12 में इतना जरूरी नहीं है, एंट्रेंस क्लास में के लिए जरूरी होगा। चलो ये था SN1 का फंडा। अब ये क्वेश्चन बताते हैं आपको, SN1 किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो SN1 रिएक्शन वो बेसिकली डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देन जो प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये तो आपको मालूम है 11 स्टैंडर्ड में। टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल सेकेंडरी, क्योंकि पहले स्टेप से SN1 निकलता था, पहले स्टेप में ही SN1 का प्रोडक्ट हम निकालते थे, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो चलो एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, कभी कभी एनसीईआरटी बोर्ड में बार बार पूछा गया, बेंजाइल क्लोराइड एंड इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड, ओके, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, ओके, तो इस दोनों के अंदर कौन वाला SN1 बेटर दिखाएगा? मुझे सवाल बताओ, SN1 बेटर दिखाएगा? सिंपल सा लॉजिक है, देखो पढ़ाई में आपको लॉजिक के साथ चलना है, प्रैक्टिकल दिखना है क्या है। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड योर बेंजाइल क्लोराइड। अब इस दोनों कंपाउंड के अंदर कौन SN1 बेटर दिखाएगा? तो टर्शियरी पे भाई हमको पता चल गया, टर्शियरी फर्स्ट देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये अल्किल हैलाइड में ऑलरेडी हमने बात कर ली। अभी इस अलग अलग कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, चलो कैसे हम पता कर सकते हैं। चलो चलो चलो, इधर से अब क्लोरीन को यहाँ से हटा दीजिए, इधर से इस क्लोरीन को यहाँ से हटा दीजिए, इसको यहाँ से हटाने से इससे क्या हो गया? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो कार्बन के ऊपर तो बेंजीन रिंग है, कार्बन से पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये क्या हुआ? कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन है ना? नहीं, ये भी इधर से हटा दीजिए, कार्बोकैटायन, ये भी पॉजिटिव है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ये भी प्राइमरी कार्बोकैटायन है ना? नहीं, चलिए ये कार्बन किसके साथ लगा है? इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, तो ये प्राइमरी कार्बन, दोनों सेम है, बराबर है। अब इस दोनों के अंदर क्या होगा? यहाँ से रिजोनेंस हो सकता है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा? पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव स्टेबल कर सकता है, नेगेटिव स्टेबल करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल सकता है रेजोनेंस के जरिए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचने से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल हो जाएगा। तो उसका मतलब है जो ज़्यादा स्टेबल बन सकता है, द रेट ऑफ SN इज मोर, दैट मीन्स बेंजाइल क्लोराइड इज शोइंग SN1 फास्टर देन दिस कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर कोई रिजोनेंस रहने की चांस नहीं है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको मिलने वाला नहीं है। कहाँ से इलेक्ट्रॉन लाएगा? किधर इलेक्ट्रॉन है? किधर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मगर इधर इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, समझ में आया? तो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है। चलो ये इंडक्टिव इफेक्ट भी बहुत पावरफुल है, रिजोनेंस इफेक्ट आपको मालूम है, तो रिजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये वाला एक क्वेश्चन था। तो लो लास्ट है आज का SN2 मैकेनिज्म के साथ हम खत्म करेंगे इस क्लास को, अगले क्लास पर हम देखेंगे बाकी रिएक्शन सब। SN2 दिस इज अ बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, एक्चुअली बाइमोलिकुलर नहीं देखना, काइनेटिक्स होता है, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, SN2 बाइमोलिकुलर। चलो SN2 रिएक्शन कैसे होता है? ये जो बेसिकली SN2 कौन दिखाता है? इट इज shown by प्राइमरी अल्किल हैलाइड, ये बेसिकली प्राइमरी अल्किल हैलाइड दिखाएगा, अलग अल्किल हैलाइड दिखा सकता है, बेसिकली प्राइमरी अल्किल हैलाइड दिखाएगा। ये जो रिएक्शन होते हैं इट इज ऑकर्स इन ए सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में हो जाएगा, इट ऑकर्स इन ए सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज शोन बाय प्राइमरी अल्किल हैलाइड, ये ऑकर्स इन ए सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में रिएक्शन होगा। एक ही स्टेप में क्या होगा? इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक साइमल्टेनियसली एक ही टू दी
अल्किल हैलाइड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे से अटैक करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, सो एज टू फॉर्म क्या बनेगा, सो एज टू फॉर्म क्या बन सकता है, सो एज टू फॉर्म इन्वर्सन प्रोडक्ट, 100% इन्वर्सन प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ये रिएक्शन कैसे होता है? इट इज शोन बाय प्राइमरी अल्किल, प्राइमरी अल्किल हैलाइड दिखाएगा RX, उसमें से न्यूक्लियोफाइल आप डाल दीजिए, रिएक्शन करो, तो ये रिएक्शन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इधर से बैक डायरेक्शन से अटैक करेगा, फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि भाई हालोजन नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होने की चांस है, क्योंकि एक ही स्टेप में वो हो जाएगा रिएक्शन। ये जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव आएगा डायरेक्ट अटैक करेगा अल्किल हैलाइड को पीछे से। कहाँ से अटैक करेगा? पीछे से अटैक करेगा। तो पीछे से अटैक करने से ये वाला न्यूक्लियोफाइल आ गया और यहाँ से धीरे धीरे करीबन इस रिएक्शन 10⁻⁻⁶ सेकेंड में होता है, बहुत धीमे, इतना ही धीमा नहीं, न्यूक्लियोफाइल ओके 10⁻⁶ सेकेंड के अंदर वो अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल इधर आता है, पीछे से अटैक करेगा, अल्किल ग्रुप से अटैक करेगा, इधर से हालोजन जो होता है वो लीव करेगा, दिस इज लिविंग ग्रुप। ये पीछे से लगेगा, वो आगे से छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इन द बैक डायरेक्शन एंड हालोजन विल लिव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये पीछे से लगेगा, आगे से निकल जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज ये बीच वाला पोजीशन है। उसके बाद क्या होगा, ये जो रिएक्शन ये स्टेप वाला बहुत धीरे धीरे होता है, स्लो स्टेप होता है, ये बहुत स्लो स्टेप, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, पीछे से अटैक करेगा, हालोजन यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाएगा। ये पीछे से अटैक करना है और यहाँ से लिविंग करना है, ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप, ये छोड़ने वाला ग्रुप लिविंग ग्रुप है, ये अटैक करता है। तो देन क्या होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल चल के पीछे लग जाएगा, ये कंपाउंड आ गया और हालोजन यहाँ से निकल पड़ा। समझ में? तो एक ही स्टेप में वो रिएक्शन होता है और 2 स्टेप की जरूरत नहीं है इधर। तो ये क्यों SN2 हुआ? तो ये वाला जो स्लो होता है, ये होता है आपका फास्ट, बहुत जल्दी सेकंड वाला स्टेप में हो जाता है, एक ही स्टेप में सेकंड पोजीशन पर बहुत जल्दी, जब छोड़ने की बारी आता है जो जल्दी छोड़ देता है, उसका भी मैकेनिज्म है। तो न्यूक्लियोफाइल आता है, पीछे से लगता है, हालोजन यहाँ से निकल जाता है, सिंपल सा रिएक्शन है। तो यहाँ पर रेट को डिटरमाइन आप कर सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड R = ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, अल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड होता है। कौन सा? रेट ऑफ रिएक्शन। सो दैट मीन्स इट इज SN2, इट इज SN2। ये लास्ट ईयर आपका बोर्ड में एग्जाम में आया था, व्हाट इज SN2 रिएक्शन, आपको यहाँ तक लिखना है। It is shown by primary alkyl halide. It occurs in a single step. In this reaction, nucleophile attack to the alkyl halide in the backward direction, so as to inversion product is formed. तो रिएक्शन दिखाना है आपको, अल्किल हैलाइड ये हो गया RX, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज इधर से आया, पीछे से लगेगा, आगे से क्यों नहीं लगेगा? क्यों आगे आने से हालोजन और न्यूक्लियोफाइल दोनों नेगेटिव रिपल्स नहीं होने की चांस है, आगे आने के लिए, अंदर घुसने के लिए नहीं देगा। तो इसको पीछे से अटैक कर रहा है, फट जाके पीछे से अटैक करेगा, तो ये लगने से यहाँ से हालोजन छोड़ के चला जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया, ये बहुत स्लो होता है पहला वाला। तो इसके लिए इसका रेट डिटरमाइनिंग हमेशा, जो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है और कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो उसको स्लो स्टेप से रेट ऑफ डिटरमाइनिंग करते हैं, रेट RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो R = K यहाँ इसके ऊपर डिपेंड होता है और इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो हो गया, 2 मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज SN2 और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इट इज SN2। तो इसलिए वो SN2 होता है। अटैक करने के बाद X चला गया, सिंपल सा, समझ आ गया? मिटाए। चलो अब एक एग्जाम्पल डालते हैं SN2 के लिए, और कुछ SN2 बारे में बताते हैं। SN2 तो SN2 का जो ऑर्डर होता है, SN2 कौन दिखा सकता है? बेसिकली SN2 दिखाएगा प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद टर्शियरी अल्किल हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये तीनों अल्किल हैलाइड, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, टर्शियरी कार्बन में लगा A, B, C, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो SN2 ऑर्डर लिखो।
तो SN2 सबसे बहुत अच्छा कौन दिखाएगा, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। इसके अंदर प्राइमरी अल्किल हैलाइड कौन है, ए वाला जो आयोडीन है हालोजन है, ये प्राइमरी कार्बन में टच है, दिस इज प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो ए इज बेहतरीन दिखाएगा, पहले SN2 को ए दिखाएगा, उसके बाद सेकेंडरी ये C दिखाएगा, उसके बाद B दिखाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ SN2, क्लियर। सो प्राइमरी कार्बन में हालोजन लगाए, दिस इज SN कौन, SN1 प्राइमरी अल्किल हैलाइड दिखाए, दिस इज द ऑर्डर। समझ में आ गया। नंबर 2 पॉइंट, SN2 इस SN का वही सब रिएक्शन, इसको हालोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, हीट रिलीज होना, इट ऑल्सो ऑकर्स इन लो टेम्परेचर, ये भी लो टेम्परेचर में फेवर करेगा, ये भी लो टेम्परेचर में फेवर करेगा SN रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप, SN रिएक्शन के बारे में और क्या बताया, SN2 के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है, द सॉल्वेंट इज पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, प्रोटिक अप्रोटिक, प्रोटिक जो प्रोटोन H+ डोनेट कर सकता है, पोलर अप्रोटिक जो प्रोटोन डोनेट नहीं कर सकता है, उसका भी कुछ एग्जाम्पल है आपका एसीटोन, बेस्ट एग्जाम्पल है CH3CO CH3, दिस इज अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन। और भी अलग अलग एग्जाम्पल है पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के दौरान SN2 इज ऑकर्स इन सॉल्वेंट इज मोस्ट बी सॉल्वेंट इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, क्लियर। लो टेम्परेचर में होता है, दिस इज सॉल्वेंट इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आ गया SN2 रिएक्शन। और SN2 में क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन दोनों स्पेसीज, डिपेंड्स किस किस के ऊपर डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स बेसिकली डिपेंड होता है अल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों के ऊपर डिपेंड हुआ है। जेई में एक बार एक्चुअली क्वेश्चन आया था, यदि एक रिएक्शन में अल्किल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन को हम 2 गुना कर देंगे और न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना कर देंगे, तो इसमें रेट कितना इफेक्ट होगा, रेट ऑफ SN2 का रिएक्ट। सो R इज इक्वल टू RX एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों का को 2 गुना कर देंगे, तो 2 × 2 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आया। तो दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। मगर SN1 में क्या होता है, SN1 में सिर्फ अल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड होता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नहीं होता है। समझ में आ गया। तो दिस इज द SN1 में न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, SN2 में दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ सिंपल सा रिएक्शन। और एक हाँ, लिविंग ग्रुप के बारे में बात करेंगे। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप जो ग्रुप छोड़ देता है, भाई कौन छोड़ता है, देखो इसका एक एग्जाम्पल डालते हैं। लिविंग ग्रुप, बेटर इज द लिविंग ग्रुप, फास्टर इज द SN रिएक्शन। लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड भी होना जरूरी है। जो लिविंग ग्रुप होता है, इधर लिविंग ग्रुप कौन है, देखो सपोज आपका एग्जाम्पल देता हूं, CH3 आयोडीन, मिथाइल आयोडाइड। सपोज रिएक्शन होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K+OH-। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, CH3I OH- आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इधर से OH- इधर से पीछे से अटैक करेगा। समझ में आया, प्राइमरी। तो जब पीछे से अटैक करेगा तो ऐसे बन जाएगा, चक 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 चक। ओके, कौन आता है ना, इधर OH- अटैक करने वाला है। समझ में आया, ओके। और इधर हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, 1 2 3, इधर भी हाइड्रोजन है। अभी ये वाला जो मिडिल वाला स्टेट है वो ट्रांजिशन स्टेट है। कौन सा स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, TS ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या होता है, ए अभी छोड़ने वाला, ए ग्रुप छोड़ने वाला है। अभी जब ए OH पीछे से लग रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ से, सॉरी बच्चे लोग, आयोडीन, सॉरी CH3 आयोडीन, आयोडीन। तो OH इधर से लगने वाला, जब लगता है तो आयोडीन इधर से रिलीज होता है, ये आपका लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप जो होता है, जिसका बड़ा साइज होता है, वो बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप है। इजीली लार्ज साइज दे विल बी इजीली रिमूव। सो यहाँ पर क्या होता है, लिविंग ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए, I- आयोडीन। तो आयोडीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, आयोडीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। आप आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो सबसे बेहतरीन लिविंग ग्रुप इसके अंदर हाइड्रोजन आयोडीन ही आएगा। तो अल्किल आयोडाइड फेवर करेगा रिएक्शन। इसलिए जब ए का ट्रांजिशन स्टेट में कितना वैलेंस है, 5 मेंबर, 1 2 3 4 5, मगर कार्बन का पास वैलेंस क्या है, 4, तो 4 से ज़्यादा नहीं देख सकता है, तो आयोडीन इधर से हटना है। तो जब आयोडीन इधर से हट जाएगा तो आपके लिए आंसर आ जाएगा, चलो देखो HOH। ये जो प्रोडक्ट अभी आपको मिला, एक कंप्लीटली 100% इन्वर्सन प्रोडक्ट, कंप्लीट 100% इन्वर्सन प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है बच्चों।
तो ये SN2 था, SN2 का एक एग्जाम्पल आपने सामने रखा। मिथाइल आयोडाइड जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो आपको दिख सकते हो, एसीटोन भी डाल सकते हो, एसीटोन सॉल्वेंट भी डाल सकते हो, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और भी DMPH डाइमिथाइल कंपाउंड भी कुछ है, सल्फ्यूरिल, हम बात करेंगे उसको, मैकेनिज्म में एंट्रेंस क्लास में बताते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या होता है, OH माइनस इधर से आएगा और अटैक करेगा, समझ में आ गया आप लोग को। तो 100% इन्वर्सन प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा SN2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट SN1 एंड SN2। कीप वॉचिंग डिफरेंट वीडियोज, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन आता रहता है SN1 और SN2 देकर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम है आप तो कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे वीडियो अगर दिख रहे हो, नंबर आपके पास है 7008140559। कीप वाचिंग। अगर अगली क्लास पर हम बात करेंगे उसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी जिसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट निकलता है, उसके बारे में हम अगले क्लास पर बात करेंगे। ओके, जो रिएजेंट के साथ और एलिमिनेशन रिएक्शन होती है मेटल और बाकी कुछ रह गया उसको साथ अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू, कीप वाचिंग।